हे गाइस, दिस नीरज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। पहले पार्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ईटीएफ्स वर्सेस म्यूचुअल फंड्स, एज टू व्हाट माय थॉट प्रोसेस इज, व्हाट आर दीज प्रोडक्ट्स एंड व्हाट हैपेंस in each of them and why you should pick one over the other, what are the benefits and the drawbacks. So that I will discuss, and then towards the end I will talk about Nifty, जो हम रोज करते हैं कि निफ्टी ने आज क्या किया, कल क्या कर सकता है। तो दोनों चीजें कवर करेंगे एंड आई विल ट्राई टू कीप द वीडियो शॉर्ट एंड क्रिस्प so that you can quickly go through both the sections. So before I start, a brief overview of the company and myself. So we deal into research services which are into stocks, mutual funds, derivatives and other products. So anyone in like a retail investor like you and me, if you are interested into investments or you are already doing and want to get it reviewed or anything, you can contact us. And we also deal into educative services. So if anyone is looking for some professional knowledge into stock markets and how to get started, how to advance into your existing investments and trading, you can contact us. So about myself, I'm MBA Finance from IIT Delhi, did my engineering from NIT Bhopal. I was working in the industry and ventured into my own company, and currently taking care of the research services and the education part. I had this opportunity to got featured by Money Control twice. So if you are interested, the link is on my website www.panomac.com. You can go through the articles. I'm dead sure if you are into derivatives, you will like it. So let's get started. Let's see. First I will cover about the background and basics of mutual funds and ETFs, index funds. Very briefly, I am not going to go into too much detail. उससे related I will come up with another video which would be on basics of mutual fund and basics of index funds, ETFs and other funds. तो वो मैं वीडियो ला के आऊँगा इस वीकेंड पे या मोस्टली नेक्स्ट वीक। इससे पहले मैंने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक वीडियो डाला है विच इज़ almost now 2 months old. उसमें I talked about कि what how you can have better returns in mutual funds and what you have to do. So a blind SIP will not work. ऐसा नहीं है कि आप SIP करते रहोगे for 5 years 10 years and it will give you a good return. That's not going to happen. So do watch that video. I will place the link towards the end of this video. तो mutual funds क्या होते हैं? Basically, if I want to invest into let's say stocks, or I want to invest into a bond, or let's say any debt product, so I can either do it directly, but for that I should have the knowledge of how I do it, right? So if I have to buy a stock, I should know which stock should I buy, what should I do, and all those things. And likewise, if I have to invest into a debt product, I need to know what that debt product is, what are the risks, what are the return profile, and all those things. And then the operational part is obviously there, which is simpler. So suppose someone is busy and he doesn't have the time, he or she doesn't have the time that they can research about stocks, invest of their own, take that risk and stuff. So what they can do is they can invest into mutual fund. There are different categories of mutual fund, almost 15-20 categories of mutual fund, which have different objectives of where they invest, what the risk and return profile are. So you can choose the right mutual fund category for you. There would be a fund manager who will basically invest your money on your behalf, but it would be a pooled money. So what will happen is investors like you, let's say thousands or lakhs of investors like you, will pool in money into the mutual fund company, into a particular scheme of the mutual fund company, and in that scheme the fund manager will manage your fund. So in simple terms, that is a mutual fund, right? So you are basically giving your money into a pooled account for someone else to manage your money. So they will deduct their fees in between, a small part of it, and the rest will be invested, and they will try to generate returns for you, and you can reap the benefits there. So that is a mutual fund in basic terms. Now, what is a index fund or ETFs? See, basically mutual fund, suppose I choose a large cap mutual fund. So now what is a large cap mutual fund? Is a mutual fund wherein the fund manager will mainly invest into large cap funds, which means
he will pick up the best of the large cap funds, which are big companies, which have market cap of around close to 20,000 CR plus. So big companies like Infosys, TCS, Reliance Industries, Maruti Suzuki, to name a few. So companies like this, as per his discretion of what seems appropriate to him. So it might happen that mutual fund manager might think Maruti Suzuki is not a good investment, so I will not invest into that, but I will invest into the other large cap companies, and likewise. So he will add value in terms of his expertise, that what is a right investment to make and what is not. So that is a large cap mutual fund. Now again, they will invest into mid cap and small cap also, but that's a very small chunk of the investment. Mainly it's into large caps. Now there are index funds or ETFs. So you would have heard that there is Nifty, there is Nifty mid cap index, there is pharma index, and whatnot, right? So let's say there is a fund which says that we will invest into Nifty. What it means is, a Nifty ETF, what it will do is, Nifty is calculated by a formula which is based on the price of 50 different companies. So let's say, let's for simplicity say, there are 4 companies: Reliance, Maruti, TCS and Infosys, right? So these 4 companies are there in the index, and index value, let's say Nifty value, is calculated based on these 4 companies. Now there would be a weightage to each of these companies. So let's say weightage of each of them is 25%. So what will happen is, index would be calculated by a summation of 25% of each of them. So Reliance का प्राइस जितना भी चल रहा होगा उसका 25%, ITC Infosys का जितना भी चल रहा होगा उसका 25%, TCS का जितना भी चल रहा होगा उसका 25%, एंड मारुति का जितना भी चल रहा होगा उसका 25%, उससे इंडेक्स आ जाएगा. नाउ these 4 companies will change basis of performance. तो एक साल बाद अगर कोई और top 4 companies आ जाती हैं, right, तो they will get replaced in the Nifty index. So index fund क्या करेगा? If you invest into a index fund or a Nifty ETF, what it will do is, it will basically replicate your investment. So if you say 100 rupees I want to invest into index fund, they will blindly just मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ guys, there are little bit intricacies, I am not going into that. So basic thing is, they will basically buy 25% of Reliance, 25 rupees का Reliance ले लेंगे, 25 rupees का Maruti Suzuki, 25 rupees का TCS, 25 rupees का Infosys. अब जैसा भी इंडेक्स परफॉर्म करेगा वैसे ही आपका ETF परफॉर्म करेगा मोटा मोटा, right? So this is the concept. So what is happening is, in a index fund there is no, or very less, if I could say that, value addition that the fund manager is providing you. He is just replicating, you instructed him that invest my money into Nifty fund, and he just blindly invest that money into the companies that constitute Nifty. While in mutual fund, the fund manager adds value, wherein he will define, or he will by his research decide. Let's say he thinks Maruti Suzuki is not a good investment, so he might invest 50 rupees in Reliance, 25 rupees in TCS and 25 rupees in Infosys, and not in Maruti Suzuki. So that is the kind of value add that the fund manager is adding. Now whether it's a value add or it backfires the fund manager, his decision goes wrong, is another thing, right? So that we will define, that we will see by the data, what data says us, right? So we will not go by myths that float around the industry. Now अभी ये समझने आ गया कि ETF क्या होते हैं, मतलब इंडेक्स फंड क्या होते हैं मोटा मोटा, एंड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, राइट? नाउ एक कॉमन बिलीफ है दैट ETFs आर बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दैट म्यूचुअल फंड्स. ऐसा कई लोग बोलते हैं, दो देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन. सब लोग ETFs को ही म्यूचुअल फंड नहीं कंसिडर करते हैं. दो ETFs क्या एक ट्रेड होते हैं एक्सचेंज पे, आप उसको मार्केट आवर्स में भी ले सकते हैं, व्हाट नॉट. सो देयर आर इंट्रिकसीज, बट देन मोटा मोटा पीपल थिंक ETFs आर बेटर देन म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि देयर रैशनल इज, जितना मैंने इंटरेक्ट किया है एंड व्हाटएवर इंफॉर्मेशन आई कुड गेट, इज
ETFs का एक तो एक्सपेंस रेशियो लोअर होता है एंड देयरफॉर दे आर बेटर. नाउ टेल मी वन थिंग, जब कोई फंड पैसिवली मैनेज हो रहा है, वेयर इन द फंड मैनेजर इज नॉट मेकिंग हिज डिसीजन, राइट, ही इज जस्ट ऑपरेशनली इंप्लीमेंटिंग दी थिंग्स. आपने बोला 100 रुपए इंडेक्स फंड में डाल दो, उसने 100 रुपए का आपका खरीद दिया, तो ही इज जस्ट एग्जीक्यूटिंग ऑन योर बिहाफ. मोटा मोटा ठीक है, थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड करता है, ऐसा नहीं है. आपने 100 रुपए बोला तो मे बी वो 90 रुपीज ही करे अभी. तो दोज ऑल थिंग्स आर देयर, बट देन एट अ हाई लेवल ही इज almost adding nothing, no value to your investment. He is just replicating. While in a mutual fund, the mutual fund manager is putting his expertise and putting his thought process behind it. So what do you think? There would be higher charges for that, right? Obviously, if he is giving you or trying to give you a better return than ETFs, so he will charge more because he is more capable, he is more qualified to do that, right? So fund, the AMC of the mutual fund, the company of the mutual fund will hire a more experienced person and a more diligent person for mutual funds than an ETF, right? ETF तो एक 12th pass भी कर सकता है, right? This is just my opinion. It's not like कि 12th pass उसको करता है. तो so that is my view. Again, I might be wrong in this, but then I understand because of that view, उनका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो गई होगा, मतलब कंसेप्चुअली ज्यादा होगा. Why should it not be? But should we worry about it? I mean, अगर मेरे को नेट रिटर्न, सपोज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ 100 रुपीज, मेरे को अगर म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलता है 10 रुपीज का और लेट से ग्रॉस रिटर्न मिल रहा है 15 रुपए का, उसमें से 2 रुपए ले लेते हैं वो एक्सपेंस रेशियो, तो मेरे को नेट रिटर्न मिला 13 रुपए का. वही ETF में रिटर्न वो दे रहे हैं मेरे को 10 रुपए का और वो चार्ज कर रहे हैं मुझसे 0.5 रुपीज, तो मेरे को नेट रिटर्न मिला 9.5 रुपए. तो विच इज बेटर? आई विल लुक एट 9.5 वर्सेस 13 रुपीज, और आई विल कंपेयर कि वो 2 रुपए चार्ज कर रहे हैं एंड ये सिर्फ आधा रुपए चार्ज कर रहे हैं, तो मैं आधे रुपए पे जाऊंगा, राइट? सो इट्स लाइक सेइंग कि आई विल गो टू अ डॉक्टर फॉर कंसल्टेशन हु चार्जेस मी the lowest consultation rather than seeing कि वो क्या qualified है, उसकी क्या expertise and stuff. I will go wherever it is cheap, right? So that should not be the thought process. Second is, एक और rational जो market में चलता है, passively managed funds are better than actively managed funds. तो अब इसमें मेरा ये बोलना है, right, कि देखिए when you compare a retail investor and say कोई retail investor लेके छोड़ दे stock and let's say he buys today and leaves it for 10 years and then seizes versus someone who buys today, sells after 1 month, again buys after 2 months and stuff. Us case mein this would be true. Passively managed funds would perform better than actively managed fund. But when you are talking about mutual funds and when you are talking about index funds, guys, these are being managed by professionals. They are very much equipped with knowledge, tools, data and stuff, and the kind of research that they do, that they will obviously take better decisions, right? So usme actively managed funds are, I mean, as per me, will perform better, right? We will check, I mean, मैं मोटा मोटा बस बोल नहीं रहा हूँ, we will check with the data क्या बोलता है, because data is everything, right? In this era, in this age we live wherein we follow numbers, everything is defined by numbers. So we will see numbers क्या है. अब मैं डिफरेंस बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है. देखिए इसमें क्या है, वो ओवर एलोकेशन हमारे, मतलब हमारे संग क्या दिक्कत हो जाती है जब हम एक्टिवली मैनेज करते हैं, कोई चीज गिर रही होती है, बोलते हैं कि स्टॉक्स कहीं भी जाएं, निफ्टी इंडेक्स तो ऊपर ही जाएगा, राइट, विच इज ट्रू. तो विच डजंट मीन कि ETFs आर बेस्ट. इसका एग्जांपल ये है कि जैसा मैंने बताया था, 4 कंपनीज से निफ्टी बना, लेट्स से मारुति सुजुकी, रिलायंस, इन्फी और TCS. अब 1 साल बाद ऐसा हो रहा है कि मारुति का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और लेट्स से ITC का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है देन मारुति सुजुकी. तो व्हाट विल हैपन इज इंडेक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय ITC. तो मारुति को हटा देंगे, ITC को इंक्लूड कर देंगे, तो आपका जो ETF का भी फंड मैनेजर है वो भी आपका मारुति सुजुकी की होल्डिंग बेच देगा और ITC की शेयर खरीद लेगा. सो इसमें क्या हो रहा है, जो बेकार परफॉर्म कर रहा है वो हटाते जा रहे हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको बाय करते जा रहे हैं. इसीलिए निफ्टी इंडेक्स भी ऊपर जाता है, इसीलिए आपके ETF भी ऊंचे जाएंगे.
स्टॉक्स में क्या होता है, जब हम डायरेक्टली स्टॉक्स खरीदते हैं ना, तो हमारे संग उल्टा हो जाता है। मारुति अच्छा नहीं कर रहा है, हम और मारुति खरीदते हैं, बोलते हैं कि कभी तो अच्छा करेगा और कितना नीचे जाएगा, राइट। सो दैट इज आवर थॉट प्रोसेस। तो उसमें गलत हो जाता है। वाइल अ म्यूचुअल फंड मैनेजर विल नॉट मेक दैट मिस्टेक। म्यूचुअल फंड मैनेजर ये नहीं बोलेगा नहीं, वो शायद पहले ही इंस्टेंस में, बिफोर इट इज मूव्ड आउट ऑफ इंडेक्स, वो उससे पहले ही शायद मारुति को सेल ऑफ कर चुका होगा। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो ये जो लाइन है कि स्टॉक्स कहीं भी जाए, निफ्टी इंडेक्स ऊपर जाएगा, विच इज ट्रू, बट इट कैन नॉट बी अ रैशनल बिहाइंड अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड मैनेजर ऐसा नहीं करेगा। म्यूचुअल फंड मैनेजर तो उनसे ज्यादा स्मार्टली वो चीजें इंप्लीमेंट करेगा, एज पर मी। ओके, तो नाउ ये जो मेरी ओपिनियंस है इन कॉमन रैशनल के अगेंस्ट, लेट मी जस्ट चेक कि हमें क्या फर्स्ट पॉइंट के लिए क्या चेक करना है कि CAGR क्या है, ठीक है, और फिर देखना है कि क्या परफॉर्मेंस। सेकंड पॉइंट जो है उसमें मेरा एक्चुअली यही कहना है कि एक्टिवली मैनेज फंड्स ऑब्वियसली कुछ बहुत अच्छा करेंगे, कुछ बेकार करेंगे, ऑन एन एवरेज बेटर करेंगे मेरे को लगता है पैसिव फंड से, राइट। एंड लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली बेटर करेंगे। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि इधर उधर कर दें, बट लॉन्ग टर्म में बेटर परफॉर्मेंस होगा देन ETFs, इज व्हाट आई थिंक। तो अगर आपके ETFs में इन्वेस्टमेंट हैं, आप करते हो, तो थिंक ट्वाइस ओवर इट। आप मेरे से डायरेक्टली डिस्कस भी कर सकते हो, वी प्रोवाइड सर्विसेज अराउंड इट एंड देयर आर नो चार्जेस टू इट। तो डिस्कस कर सकते हो। एंड बेसिकली मैं यही बोलूंगा कि ETFs आर नॉट अ वेरी वाइज डिसीजन टू इन्वेस्ट। let me show you by data. Before I move on to the data, I request you, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, please do subscribe. I come up with these kind of videos, awareness videos and stuff. So please do subscribe, like and share the video. Okay, तो let me pull the data which I have already got. तो left hand side में जो आप data देख रहे हैं, that is index ETFs निफ्टी के. So there are some 19 ETFs एंड ये लार्ज कैप मैंने म्यूचुअल फंड चूज किए हैं। क्यों किए? क्योंकि रिस्क प्रोफाइल दोनों में सेम है, राइट। मतलब सेम नहीं है बट ऑलमोस्ट सेम है। लार्ज कैप फंड की रिस्क प्रोफाइल और इंडेक्स निफ्टी इंडेक्स की प्रोफाइल ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड है। मैं अगर इसमें स्मॉल कैप ले लूं या कोई थीमेटिक फंड ले लूं तो दैट वुड बी नॉट एन एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन। दिस इज मोर नियर टू एन एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन। तो अभी इसमें मैंने ये 1 ईयर का परफॉर्मेंस है, ये लास्ट 2 ईयर्स का, ये लास्ट 5 ईयर्स, ये लास्ट 7 ईयर्स, ये लास्ट 10 ईयर्स। तो अभी मैं इंडेक्स फंड का परफॉर्मेंस देख रहा हूं, तो इसको मैंने सॉर्ट किया है इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यू विल सी द काइंड ऑफ रिटर्न दैट द इंडेक्स फंड्स हैव गिवन, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हैज गिवन और ETFs have given is in the range of -17% to -11%। वही आप इसमें एक आउटलायर है, ये जो लास्ट में है -17%, इसको हटा दें तो -11 to -12%। बहुत एक क्लोज रेंज में रिटर्न परसेंटेज है, सबके सिमिलर हैं, उसी 1-2% ऊपर नीचे। म्यूचुअल फंड के आप देखोगे तो -1.57% इज द बेस्ट रिटर्न। तो आप देख रहे हो 10% का डिफरेंस है इन 1 ईयर, राइट। बट द रेंज इज वाइड, द रेंज इज स्टिल -22%। इसमें भी ये 2-3 आउटलायर हैं जो बहुत ही गंदा किए हैं। अदरवाइज आप देखोगे तो रेंज इज फ्रॉम -13-14% टू -1%। तो you see the kind of returns that you are getting, downside is almost similar while upside there is huge potential। तो अगर आपने राइट फंड, अब ऑब्वियसली यू कांट से कि मैं इधर का बेस्ट फंड पिक कर लूंगा, यहाँ का वर्स्ट फंड पिक करूंगा। सी दैट इज योर हाउ यू सिलेक्ट, बट इफ यू आर टेकिंग प्रोफेशनल सर्विसेज यू कैन टेक माई हेल्प इन पिकिंग अप सम गुड फंड्स, ठीक है। तो आइडियली यू विल गेट बेटर रिटर्न्स, दैट्स व्हाट डेटा सेज इन म्यूचुअल फंड्स। तो अभी एक और चीज इसमें क्या हुई है लास्ट 1-2 ईयर्स में, और आई वुड से लास्ट 1-2 ईयर्स का आप डेटा देखोगे तो उसमें क्या हुआ है, इंडेक्स बहुत मैनेज हुआ है। मतलब हैंडफुल ऑफ कंपनीज, आई एम गेटिंग इनटू द इंट्रिकेसीज है, बट हैंडफुल ऑफ कंपनीज हैव कंट्रीब्यूटेड मोर। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि ये इनके परफॉर्मेंस आर फॉलोइंग इन पार विथ इंडेक्स फंड। बट आप लॉन्ग टर्म में देखोगे, अगर मैं 10 ईयर्स का आपको दिखाता हूं, यू विल बी अमेज्ड टू सी डेटा कि लास्ट 10 ईयर्स में क्या हुआ है।
लास्ट 10 ईयर्स में ETF का बेस्ट परफॉर्मेंस इज 8%। 8% रिटर्न लास्ट 10 ईयर्स का CAGR है कि एवरी ईयर यू विल गेट 8% रिटर्न एंड दैट इज द बेस्ट रिटर्न दैट ETFs हैव गिवन। वही आप स्टॉक्स में देखोगे, राइट, तो 8% से ज्यादा तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द म्यूचुअल फंड हैव गिवन, राइट, एंड दी डाउनसाइड है स्टिल 6%। तो इसमें आप देखोगे तो 6% इसमें भी डाउनसाइड थी कि कोई सबसे बेकार वाला आप चूज कर ले तो -6.6% रिटर्न मिलता, इसमें आपको 6.16% रिटर्न मिलता। तो ऐसा नहीं था बहुत ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस है, मगर ऑन एन अपसाइड आपको इधर 8% मिल सकता था, इधर आपको 12% मिल सकता था। यू आर सीइंग द डिफरेंस, राइट। सो डोंट गेट इनटू, आई वुड से दी रैशनल्स दैट आई शोड कि इसमें एक्सपेंस कम है तो हम इसमें करेंगे। एक और चीज जो म्यूचुअल फंड के फेवर में जो नेक्स्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स में आपको दिखेंगे और एडिशनल रिटर्न इज, पहले इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा होता था म्यूचुअल फंड्स का, अभी वो सेबी ने रिस्ट्रिक्शंस डाल के कैटेगरीज बना के उनको काफी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो दैट एक्सपेंस रेशियो हैज गॉन डाउन फॉर म्यूचुअल फंड। तो इनका जो यही तो नेट रिटर्न्स है जो मैंने कंपेयर किए, तो ये जो नेट रिटर्न्स है ये और इंप्रूव होंगे म्यूचुअल फंड्स के और इनके सिमिलर रहने वाले हैं। तो क्या होगा, ये जो डेल्टा आप देख रहे हो ना ये और इंक्रीज होगा इन फेवर ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो इसीलिए मैं बोलता हूं म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा इन्वेस्ट करो रादर देन ETFs, क्योंकि ETFs कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है आपके लिए, उधर इधर कोई फंड मैनेजर बैठा है आपके लिए। अब देखिए, अगर मैं ऐसा बोलना डिफिकल्ट होगा कि मैं बोलूं आप मेरे साथ इन्वेस्ट करो एंड आई विल पिक अप द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड, तो आज मैं जो पिक करूंगा 10 साल बाद इधर होगा नंबर 1 पे। दैट इज, हो सकता है, मैं अपनी रिसर्च करूंगा, रेगुलरली ट्रैक करूंगा, चेंजेस करूंगा, हो सकता है कि हो जाए, बट इट वुड बी हार्ड टू से कि मतलब किस्मत भी चाहिए उसके लिए। तो लेट्स अज्यूम कि लेट्स से मैं 7th बेस्ट पिक करता हूं, ये वाला 9.11 ठीक है, और इसमें 7th बेस्ट होता है हमारा विच इज 6.99 रिटर्न। तो इसमें इतना निकला, इसमें इतना निकला। अब कोई मुझसे पूछेगा कि इससे कितना ही डिफरेंस पड़ने वाला है, 7% रिटर्न वर्सेस 9% रिटर्न। तो 10 साल बाद का आप डेटा देखोगे, मैंने कैलकुलेट किया है मोटा मोटा, तो अगर आपका 9.57% रिटर्न है और 7.11% रिटर्न है, आप अगर 10 lakhs इन्वेस्ट करते हो, राइट, तो आपका 10 lakh आफ्टर 10 years will become 25 lakhs with this वो and only 20 lakhs with this. So you see 10 lakhs will become 25 or 10 lakhs will become 20 lakhs. So 2 times to 2.5 times. That's the kind of difference that you get, right? तो इसीलिए मैं बोलूंगा थोड़ा सा क्या डेटा के बेसिस पे जाओ। ये सब जो र्यूमर्स मार्केट में रहते हैं, आई डोंट नो ये कहां से आते हैं। कुछ लोग तो ये वाली जो लाइन है दे एट्रीब्यूट इट कि वॉरेन बफे हैज सेड दैट, मे बी आई डोंट नो इफ ही हैज सेड इट और नॉट, मे बी वॉरेन बफे को ही नहीं पता कि उनने बोला है कि नहीं ये चीज, राइट। लोग छाप देते हैं कि उनने बोला, ये र्यूमर्स रहते हैं मार्केट में, आप उसके बेसिस पे अपने डिसीजंस मत मेक करो। डोंट बेस योर डिसीजंस ऑन दैट, बेस योर डिसीजंस बेस्ड ऑन डेटा। क्या दिख रहा है डेटा में, क्या हो रहा है, उसके बेसिस पे करो, राइट। शॉर्ट टर्म में हो सकता है ETFs के बेटर रिटर्न हो, लॉन्ग टर्म में नहीं होंगे, क्योंकि क्या है उसका भी एक रैशनल है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए आई एम नॉट इंक्लूडिंग दैट, बट दैट इज द थॉट प्रोसेस। तो आई होप यू लर्न फ्रॉम इट एंड नाउ आई विल क्विकली मूव इनटू कि निफ्टी के रिव्यू पे, कि निफ्टी क्या किया आज एंड क्या कर सकता है कल, राइट। तो ये निफ्टी का आर्ली चार्ट है एंड कल मैंने शायद बताया था 15 मिनट्स के चार्ट पे, मैंने बोला था कि कल अगर ये रेंज ऊपर की तोड़ता है, राइट, ये एक रेंज तोड़ता है तो ऊपर जा सकता है यहां तक, राइट, एंड अगर ये नीचे की रेंज तोड़ता है तो फिर 10,050 के लेवल्स तक आ सकता है। आज मार्केट क्या उसी जोन में खुला, हमारे रेजिस्टेंस जोन में, वहां से डाउनसाइड आया फिर ऊपर गया। यहां पे कहीं पे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आज डाला भी कि आज मंथ क्लोजिंग है, तो आज मंथली असर्शन आ सकता है विच इज नेगेटिव, तो एक नेगेटिव बायस आ सकता है मार्केट में। एंड ये यहां से इतना बड़ा एक फॉल आया, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी बिकॉज ऑफ द मंथली असर्शन, बिकॉज जिनने पोजीशंस ले रखी होंगी जो उस कैंडल को फॉर्म कर रहे हैं वो उसको डाउनसाइड ले जाने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता है कई बार, कंफर्म नहीं है बट कई बार होता है जब एक डिविएशन रहता है। तो दिस वाज अबाउट टुडे। अब कल क्या कर सकता है मार्केट, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइज। आई हैव बीन
सेइंग द सेम थिंग, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, इन दोनों के बीच में मार्केट अभी चल रहा है। ये जिधर तोड़ेगा, ऊपर तोड़ेगा तो ऊपर, नीचे तोड़ेगा तो नीचे। ऐसा भी हो सकता है कई बार, देखिए ये सेम चीज काफी लोग देख रहे होंगे, राइट, काफी लोग सोच के बैठे होंगे कि ऐसा होगा, राइट। इट्स नॉट ओनली मी हु नोज टेक्निकल एनालिसिस। तो ऐसा भी होता है कई बार कि ऐसे ये नीचे तोड़े और फिर एकदम से ऊपर चले जाए, राइट। तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो रिस्पेक्ट दैट, राइट। आपने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई लेट से और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा, ये यहाँ पे हिट हो गया, रिस्पेक्ट दैट। आई हैव सीन पीपल एंड फिर दे कॉन्टेक्ट मी, दे अगेन टेक शॉर्ट शेयर, सेज कि अब तो नीचे जाएगा, सर ने बोला था ये तोड़ दिया तो नीचे। देखिए अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर यू हैव टू अगेन बेस कि ये इसको तोड़े, देन अगेन यू ट्राई टू एंटर, राइट। एक एंटिसिपेशन में मत घुस जाओ कि आप कितना और ऊपर जाएगा यहाँ पे मैं। लाइकवाइज फॉर अपसाइड, अगर ऊपर जाता है और फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो एक्सेप्ट, रिस्पेक्ट दी मार्केट मूव, मार्केट भाव मालिक है, वो जो कर रहा है उसको देखो, राइट। अभी डे लेवल पे मैं बताऊं तो डे लेवल में आप देखोगे, मैं पहले भी कई बार ये चीज़ें बता चुका हूं, मैंने यहाँ पे बताई थी, राइट, मैंने यहाँ पे भी बताया था, राइट, कि ये एक बड़ी रेड कैंडल बनी है, राइट। उसके बाद क्या मार्केट होल्ड किया है, इट्स बीन 4 डेज। अगर आप देखो यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल, 4 डेज, 5 डेज का होल्ड था, फिर एक लार्ज मूव आया, इधर 4 डेज, इधर 3 डेज का होल्ड आया, फिर एक मूव आया, राइट। पास्ट में भी आप देखोगे तो जैसे ये है, यहाँ पे 1 2 3 4 दिन का, 5 दिन का होल्ड आया, फिर एक मूव आया। बट ये क्या ट्रैप था, ऊपर खुला और एकदम से नीचे, और फिर नीचे का भी ट्रैप था और फिर ऊपर, राइट। तो इधर भी सिमिलर थिंग यू कैन एक्सपेक्ट, यू कैन एक्सपेक्ट कि देयर वुड बी वोलेटिलिटी कमिंग इन, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट एकदम से नीचे जाए, एकदम से ऊपर जाए। मैंने आपको ऑलरेडी रेंज बता दी है 15 मिनट्स पे, राइट। तो उसके हिसाब से ट्रेड करो, बट एक मूवमेंट आना प्रोबेबल है। तो अभी ऑप्शन राइटिंग अगर आप करते हो तो ऑप्शन राइटिंग अवॉइड करो, क्योंकि अभी क्या एक मूव आना है, एक डायरेक्शन सेट हो जाए उसके बाद आप ऑप्शन राइटिंग करना, राइट। तो और नीचे के लेवल जैसे मैंने बताया 10,050, तो उन लेवल्स पे पहुंच जाए तो फिर पुट राइटिंग कर सकते हो। तो अगेन डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रेटजी, तो उस बेसिस पे करिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एंटिसिपेशन। So that's from my side, guys. Sorry that the video got a little long. It's almost 27 minutes now. But I hope I could add some knowledge to your knowledge bank, and you learned new things today. Please do spread the information, share it with others, share it with your parents, your family members, your elders, या आपके जो भी आपके जान पहचान में जो भी इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं उनको शेयर करो, सो दैट यू दे लर्न दिस थिंग्स, एंड आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प देम और मे बी असिस्ट देम प्रोफेशनल सर्विसेज। डेफिनेटली इट्स अ बिजनेस पर्सपेक्टिव फॉर मी ऑल्सो, फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, बट देन वी डोंट चार्ज एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू, और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हम जो रिव्यू करते हैं पोर्टफोलियो या कुछ भी उनको एडवाइस देते हैं वन टाइम, that is free of cost. We are not charging anything, so you can ask them to contact us. Thanks guys, thanks for watching. I hope you guys are learning, and thanks, keep watching. Thanks, bye bye.